So today we are at this address, King Henry's Road, NW3, Camp. Can you guess the place where we are? Can you guess the name of whom we are talking about? There's only one legend, a man with 32 degrees, educational degrees, I mean. Proud to be an Indian. I hope you have made a guess till now. Say father of His father name was Ramji Bhai, the man behind our biggest Indian. constitution of India. and Yeah, that's can you true. guess where Yes, we you're are? guessing right. हम कहाँ हैं? Yeah, that's Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891 to 1956. Wow, वो यहीं पे रहे थे. Number one scholar in the world. Stayed here and finished his studies in London. Let's just go inside. आज ये एक म्यूज़ियम है और ये कैम्पटन इलाके में, जो बहुत ही अच्छा इलाका है लंदन का, बहुत ही महंगा भी है, प्रिमरोज हिल के ठीक बाजू में. सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड द होम ऑफ मिस्टर डॉक्टर भीमराव साहब आम्बेडकर, हु हैज़ टेकन 32 डिग्रीज इन हिज लाइफ टाइम. और वो ना थकते थे पढ़ने से और ना डरते थे किसी से. So let's just visit his home in London. Hello, good afternoon. Let's just write a name in the visitor. सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा. So जैसे ही रूम में हम एंटर करते हैं तो there is a very good statue of Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar. And आजू बाजू उन्होंने जो कार्य किए उनके सारे फोटोज एंड ऑल रखे हुए हैं. So today with us also one of the student follower of Dr. Baba Saheb Ambedkar, Miss Deepika, who just completed his masters in MBA. और आज उनका कॉन्वोकेशन है और बाबा साहेब आम्बेडकर के आशीर्वाद लेने यहाँ आई है. सो लेट जस्ट टॉक विथ हर कि वो कैसा फील कर रही है एंड ऑल. Hi everyone, I'm Deepika and today is my convocation. So that's why I came to visit the Dr. Baba Saheb Ambedkar house. So come, I will show you. या ऑफ कोर्स वी विल फॉलो यू. आप हमें दिखाइए. आप कहाँ जा रही है? ये बाबा साहेब आम्बेडकर के आशीर्वाद लेने हैं आपको. दैट्स गुड. I'm standing here because of him. ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए कि जब वो डिग्री लेने जा रहा हो, बाबा साहब के पास आए और उनके आशीर्वाद ले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लोग एजुकेटेड रहे. It's your graduation, so how are you feeling? Yeah, this is very special moment for me. Yeah. For the long time I'm waiting for this moment and now actually I have done this degree. Very grateful. He's a number one scholar in the world. He had actually 32 degree. No one can achieve till then. That's true, Yeah, Deepika. that's true. Then 32 डिग्रियाँ लेना कोई मजाक नहीं है. Yeah. Hello, what's your name first of all? Hello, my name is Amir. Yeah. Me and my friend, we came from Maharashtra. We're living right now in Hatfield. So where from Maharashtra? We are from Pune. So it has been said Dr. Baba Saheb Ambedkar was from Maharashtra and we are proud of Maharashtra. Yeah, we are quite proud because Yeah. he did quite a lot for us. And- as compared to, because of him, we are the ones who got educated. Mhm. Because there were a lot of things going on at that time that lower caste people were not allowed to like educate and a lot of stuff happened regarding So to आप that. कितना योगदान मानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आपका यहाँ तक पहुँचने में? It's quite a lot. Quite because a of lot. him, because he's the one who wrote the constitution for India as well. And our king, Shahu Maharaj, Yeah. like who was ancestor for Chhatrapati Shivaji Maharaj, who helped Baba Saheb Ambedkar to came over here for his education. He was the one who initiated, because he know the potential of Baba Saheb Ambedkar, that he will be like more educated, he can do way more better in life, and he will do benefits for other people as well. So what's your feeling after coming here? कि यहाँ पे
we are pleased to visit over here, to visit his house. In the city of London, this Yeah, it's quite this a like good feeling. actually It's- Camden is It's lot more quite a good popular. feeling for us to see his house. We are able to experience what he's gone through, what he was living over here, how his room was, how was his library upstairs, that he used to write all the articles regarding his handwritten notes. We are quite pleased to see that. Thank you very much, and hope you so your much. journey in Yeah. London becomes very good Yep. Thank with you so Dr. much. Baba Saheb Ambedkar. Thank you. पहले तो बाबा साहेब आम्बेडकर भारत से हैं, जो कि मैं भी भारत से हूँ, तो बहुत गर्व है कि वो भारत से रहे हैं और ही इज़ रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, और वो अभी तक उस पे ही सब चल रहा है और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है. तो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर हु स्टूड बाय मी व्हेन वाज I don't have any direction in my life and I felt very low. That was a very bad phase in my life. Yeah. And he's a very helped me, support me and constantly keeping a motivate me. So that's why I'm standing here. So this is a moment. Yeah, that's true, Deepika. And आज आप graduate हुए. Congratulations, master's Thank you so degree, much. right, in Thank MBA. you. Thank you. MBA, yeah, that's MBA, that's Marketing proud of you. Management, Which yeah. university? Bolton University. London से. Wow, very good. Coming from India and from poor family, not middle class family, और यहाँ तक आपने जो सफ़र किया वो मानने लायक है. मतलब that's very good. You are inspiration to many in back India. और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लोग ज़्यादातर इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ लीडर ऑफ SC ST और OBC. आपका इस पे क्या विचार है कि ऐसा मानना चाहिए या नॉट ओनली लीडर ऑफ द SC ST OBC, उन्होंने सबके महिला के लिए और सबके लिए ही सब कुछ किया है. सो नॉट लाइक दैट. सो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? आपको क्या लगता है पहले क्या फ़र्क अगर वो नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने नहीं लिखा? फ्रीडम नहीं होता, बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, यहाँ पे जो मैं अभी खड़ी वो खड़ी नहीं हो सकती थी. सो उनकी वजह से सब लाइक मैं यहाँ पे पढ़ी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया बहुत ही स्ट्रगल कर से. मैं लाइक नॉट मिडिल क्लास फैमिली, वेरी पुअर फैमिली Yeah. बिलोंग. सो माई पेरेंट्स उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया मुझे यहाँ तक भेजने के लिए, माई ब्रदर ने और पूरी फैमिली ने. तब मैं यहाँ पे आई और पहले ऐसा नहीं था, एक अलग ही ज़माना था कि वो लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती थी, बस घर में रसोई और सब कुछ, वो बाहर निकल नहीं सकती थी, कुछ पढ़ाई नहीं कर सकती थी, देख नहीं सकती थी. और आज यहाँ पे है सिर्फ उनकी वजह से कि उन्होंने हिंदू कोड बिल में सब कुछ लिखा और उन्होंने सब कुछ चेंज किया. उनकी वजह से आज हम यहाँ पर है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज नॉट ओनली SC ST, उन्होंने वुमेन्स के लिए भी बहुत कुछ किया, इवन ब्राह्मण्स और सबके लिए. सो वी शुड ऑफ कोर्स प्राउड ऑफ हिम. आपके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, शायद उन्होंने ही लिखा है. एग्जैक्टली. या सो आज तक हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते आ रहे हैं और जो भारत इतना आगे बढ़ रहा है, सशक्त बन रहा है. सो ही वॉज द मैन बिहाइंड द फ्री इंडिया who wrote the Constitution of India, the biggest constitution in the world today we have. दीपिका, आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग, एक दिन गांधी जी ने बाबा साहब को पूछा था कि आप हमेशा जो भी उनके स्टैच्यूज़ है, फोटोज़ है, हमेशा शूट बूथ में वो दिखाई देते, तो वेरी मतलब जेंटलमैन की तरह. तो गांधी जी ने पूछा था आपके लोग इतने गरीब है, धोती कुर्ते में, मैं खुद धोती पहनता हूँ, खादी पे हूँ, तो आप क्यों ये शूट बूट पहनते हैं? तो क्या जवाब दिया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसका? आपको कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, उन्होंने ऐसा आंसर किया था क्या कि मैं जैसे अभी सूट बूट पहन रहा हूँ, तो वो लोग भी मुझसे इंस्पायर हो और वो लोग भी एजुकेशन लिए आगे बढ़े. मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे गरीबी में जिए, वो एजुकेशन लिए आगे बढ़े और मेरे जैसे ही सूट बूट में दिखे. सो दैट्स वाई वो हमेशा सूट बूट में दिखाई देते फॉर द इंस्पिरेशन. या दैट्स ग्रेट. थैंक यू दीपिका. और आपका आज कॉन्वोकेशन है और ये यहाँ बहुत सारी तस्वीरें, उस पर भी हम थोड़ी नज़र डालेंगे उनके घर पे. यहाँ ऊपर भी एक मैसेज दिया गया है, मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैव अचीव्ड. तो यहाँ भी उन्होंने SC ST OBC के लिए नहीं लिखा है, वुमन के लिए लिखा है. दैट मस्ट बी फोकस्ड हियर. एक तस्वीर है डॉक्टर आम्बेडकर इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेडेड बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ये यहाँ पे उनके न्यूज़पेपर कटिंग है जो उन्होंने पब्लिश किए थे. उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी चलाया था जनता द पीपल, ये दादर से, मुंबई से, इन 1930. तो यहाँ पे लिखा गया है कब चालू. सभा में बैठे हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंडिया की. सो दैट्स हिम. ये राष्ट्रपति भवन में है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट दिया था
अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद 26 नवंबर 1949 ही सबमिटेड फाइनल ड्राफ्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये एक ऐतिहासिक फ़ोटो है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने महात्मा गांधी को जो लेटर लिखा था, क्योंकि टेम्पल में एंटर नहीं करने देते थे जो लो कास्ट के पीपल थे, SC ST OBC को। सो आप देख सकते हो सिग्नेचर भी है। एंड MK गांधी फॉरवर्डेड फ्रॉम द यरवाड़ा जेल पुणे। महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दौड़े आए थे बिरला हाउस इन दिल्ली। तो उस समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो अपनी स्पीच दे रहे टू द फॉलोअर्स अक्टूबर 15, 1956। अगर ये नहीं होती तो आज भी हम गरीब होते, यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। सो बिकॉज ऑफ हिम आई एम स्टैंडिंग हियर इन लंडन एंड ग्रेजुएटेड नाउ। थैंक यू थैंक यू दीपिका फॉर द वंडरफुल मैसेज। लेट्स गो अपस्टेयर्स। उनके जो कुछ चीज़ें रखी है हम वो दिखाते। सो दैट्स ये उनका ऊपर का कमरा है। ये तो अभी शायद ऑफिस बना दी गई है। तो ये सोफ़े है और ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की फ़ोटो और ये सारी किताबें जो उन्होंने पढ़ी है, लिखी है। उन्होंने इतनी PhD कर रखी है, एक नहीं 4-5 कर रखी है। DSc Constitution of India, wow. Yeah, this is the Constitution. The biggest of India. constitution in the He world, wrote. Constitution of India. Yeah, you just have a look. Wow. So आपको कभी टाइम हो तो लंदन में आओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, ऑल द इंडियंस। और यहाँ पे सारे लेटर्स भी दिखाई दिए जाएंगे उनके हैंड राइटिंग में जो उन्होंने लिखे थे। And the lots of picture here of him. या सो ग्रेजुएट होने के बाद आशीर्वाद लेना उनके। पिक्चर है उनकी, वाओ। बहुत पुरानी पिक्चर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन हैंडल कर रहे थे उनको, वाओ। और आप छू भी सकते हो वो फोटो को, वाओ। No one can stop you now. वाओ। वी आर गोइंग ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में भी किताबें हैं और उनके जो सामान है। सो लेट्स जस्ट गो। बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पे आके कि आप कुछ भी कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने ये कर दिखाया फ्रॉम द लो कास्ट और पता नहीं क्या क्या स्ट्रगल किया उन्होंने। से फादर ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वाह ग्रेट मैन। नीचे हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका बेड जहाँ पे वो लंदन में रह के सोते थे। सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको मदद की थी यहाँ पढ़ने के लिए और उनको बुला लिया था बड़ौदा फिर से उनके लिए काम करने के लिए आफ्टर द डिग्री। और यहाँ पे उनका पेन, हाँ, वाओ। और वो ही ऐनक, पेन, स्पेक्टेकल्स एंड वाओ। तो ये वही है। आई थिंक ये छूने को दे रहे हैं लेकिन हमें शायद नहीं छूना चाहिए ताकि वो और 3 बरसों तक ऐसे ही रहे, बिगड़े ना। ये टी सेट था बाबा साहेब आम्बेडकर का, शुड नॉट टच। वाह, क्योंकि वो यही है, यही जो चश्मे जिन्होंने पढ़ाई की है वो क्या कह सकते हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट। ये सिल्वरिंग पॉट का पोर्ट्रेट है जो वो यूज़ करते थे और वो उस ज़माने के कपड़े का पोर्ट्रेट है जो वो पहनते थे। और ये ट्रैवलिंग किट होती थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जब भी वो बाहर जाते थे। तो उसमें क्या क्या होता था? शेविंग किट, ब्रश, सोप, डिश विथ गुड मॉर्निंग एनग्रेव्ड ऑन इट एंड हिज स्पेक्टिकल केस। One can get a good idea of his lifestyle from the glimpse of exhibit। और ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का तीसरा रूम डेडिकेट किया उन्होंने। सो दैट्स हिज फोटो। वाओ। लंदन में ये जो उनको वैल्यू मिली है वो कुछ अलग ही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से उन्होंने DSc पास किया था, DSc डॉक्टर ऑफ साइंस। He studied in arts, commerce, law, science, what not। पढ़ने का शौक था और इतनी पढ़ाई करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और
even the right followed by the low caste people and also the women of India, सब इनके बदौलत है. It's not only of SC ST OBC, it's for whole India. The rights जो आज हम enjoy कर रहे हैं just because of him, क्योंकि उनमें जो knowledge था वो किसी में नहीं था. तो he was chosen to write the Constitution of India by Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad. इतने महान महान लोग थे, महात्मा गांधी थे, लेकिन चूज ये हुए कि आप लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताकि हमें आगे स्ट्रगल ना करना पड़े, हमारा भारत आगे बढ़े. तो ही रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वी शुड प्राउड ऑफ हिम. एवरी वन शुड प्राउड ऑफ हिम, नॉट ओनली लो कास्ट. और वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम कि इनका इतना बड़ा नाम है. लंदन में, यूएसए में जाओगे उनकी मूर्ति से, ग्रेज इन में यहाँ जाओगे जहाँ सिर्फ वकील रहते हैं लंदन के, वहाँ पे पूरा उनका कमरा डिज़ाइन किया है और उनका स्टैच्यू है अंदर और लिखा है आम्बेडकर्स रूम. सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. मैं जब गया था ग्रेज इन में एज एन एडवोकेट और मैंने देखा अम्बेडकर रूम, ओ स्पेशली रूम है उनका. वाओ. सो क्या दैट वाज लाइक, बता नहीं सकता मैं आपको हाउ प्राउड आई फील. सो ये उनके घर की बाहर, उनका घर भी ऐसा ही है कुछ टिपिकल, दैट्स यूरोपियन स्टाइल. After coming from such a low caste in India before 1947, from Maharashtra, from the Mahar caste, and he was not allowed to drink water from the same well where all used to drink. He was not allowed to sit inside the class where students used to study. We can get inspiration from him. Lord One day he wrote the whole Constitution of India, even after Lord of facing peace. such an racism. इतना अछूत छूत होने के बावजूद एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया. तो इनसे हमें इंस्पायर होके ये सीखना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. वो ऐसा ही चाहते थे, अपने लोगों को उनके जैसा बनाना चाहते थे. ही वॉन्ट everyone to be educated, agitated and well behaved and well clothed. So हमें उनसे इंस्पिरेशन लेके यही सीखना चाहिए. तो हम विदा लेते हैं उनके घर से. हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम यहाँ आते हैं. थैंक यू बाबा साहेब आम्बेडकर. सो दिस इज़ द फोटो ऑफ कलाराम मंदिर सत्याग्रह when Hindus, low caste people were not allowed in the temple. Thank you Baba Saheb Ambedkar for giving us such an honor. We salute you.